Hello students, welcome to all in the social science class once again. Dear students, in previous module we have discussed about the Tughlaq dynasty. In this module we are going to discuss about Lodi dynasty. As I have told you that in 1451 Behlol Lodi attacked the Sayyid dynasty and established Lodi dynasty. Behlol Lodi was an able ruler. He was also a competent general. He ruled like a feudal lord. He kept the nobles by declaring that he is one among them. As he was ruler, he never sat on the throne. Several revolts occurred in Doab, but he successfully suppressed them. He also annexed the Jaunpur and other states. He was a religious person and his rule extended from Punjab to Bihar. Means 1451 में बेहलोल लोदी ने सैयद डायनेस्टी पर अटैक किया और लोदी डायनेस्टी एस्टैब्लिश की. बेहलोल लोदी एक एबल रूलर था, यू कैन से एक योग्य शासक था. वह एक अच्छा जनरल भी था, मीन्स एक अच्छा योद्धा भी था. उसने एक फ्यूडल लॉर्ड यानी सामंत की तरह रूल किया. उसने नोबल्स को यह डिक्लेयर किया कि वह उनमें से एक है. हालांकि वह एक रूलर था पर वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठा. दोआब में कई रिवोल्ट्स हुए बट उसने सभी रिवोल्ट्स को सक्सेसफुली सप्रेस कर दिया, सभी रिवोल्ट्स को दबा दिया, मीन्स कुचल दिया. बेहलोल लोदी एक रिलीजियस पर्सन था, मीन्स एक धार्मिक व्यक्ति था. उसका रूल पंजाब से लेकर बिहार तक फैला हुआ था. डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर बेहलोल लोदी हिज सन सिकंदर लोदी got the throne in 1489. He was very kind and generous towards the Muslims and ulemas. He used to give money to poor Muslims and poor widows for the marriage of their daughters. Sikandar Lodi was very jealous toward Hindus and he did not tolerate Hindus. He destroyed the temples of Hindus and built mosques in their place. He reimposed jizya, which was a religious tax on Hindus. In 1506, he founded the new city of Agra and made it his capital. बेहलोल लोदी के बाद उनके बेटे सिकंदर लोदी को 1489 में गद्दी मिली. वह बहुत ही काइंड एंड जेनरस यानी दयालु और उदारवादी था. वह पुअर मुस्लिम्स और पुअर विडोज को उनकी डॉटर्स के मैरिज के लिए मनी भी प्रोवाइड करवाता था. सिकंदर लोदी को हिंदू से काफ़ी जेलस थी, बहुत ईर्ष्या थी. वह हिंदूज को टॉलरेट नहीं करता था. उसने हिंदूज टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, मीन्स नष्ट कर दिया, और उनकी जगह पर मस्जिदों का निर्माण करवा लिया. उसने जजिया को फिर से इम्पोज कर दिया, आई मीन टू से जजिया को फिर से लागू किया, जो कि हिंदूज पर लगाया जाने वाला एक रिलीजियस टैक्स था. 1506 में उसने आगरा सिटी की इस्टेब्लिशमेंट की और उसे अपनी कैपिटल सिटी बनाया. डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर द डेथ ऑफ सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी बिकेम द सुल्तान इन 1517. Ibrahim Lodi was an intelligent, efficient and brave ruler. He faced many rebellions during his period. He was failed to bring Rana Saga of Mewar under his control. सिकंदर लोदी की डेथ के बाद 1517 में इब्राहिम लोदी सुल्तान बन गया. इब्राहिम लोदी एक इंटेलिजेंट, एफिशिएंट और ब्रेव रूलर था. मीन्स वो एक बुद्धिमान, कुशल और बहादुर शासक था. उसने अपने रूल में कई विद्रोहियों का सामना किया बट वो मेवाड़ के राणा सांगा को अपने कंट्रोल में करने में असफल रहा. डियर स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू मेक द एडमिनिस्ट्रेशन मोर एफिशिएंट, he recruited the young and brave officer to make his military more powerful.
he changed the old and senior military officers. When he changed the old officials, the nobles became unhappy. Daulat Khan, who was the governor of Punjab, rebelled against Ibrahim Lodi. He invited Babur, who was the ruler of Kabul, to attack India. Babur attacked or invaded India, and in the Battle of Panipat in 1526, Babur defeated Ibrahim Lodi and he was killed in this battle. With the death of Ibrahim Lodi in the first Battle of Panipat, Delhi Sultanate came to an end and Babur established Mughal rule in India. So dear students, with the invasion of Babur, the Delhi Sultanate declined and Mughal era started in India. मीन्स इब्राहिम लोदी ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा एफिशिएंट यानी कुशल बनाने के लिए और अपनी मिलिट्री को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यंग एंड ब्रेव ऑफिसर्स को अपॉइंट किया. उसने ओल्ड एजेड एंड सीनियर ऑफिसर्स को चेंज कर दिया. जब उसने पुराने अधिकारियों को हटा दिया तो नोबल्स उससे नाखुश हुए. दौलत खान जो कि पंजाब का गवर्नर था, इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट उसने विद्रोह किया. उसने बाबर को इनवाइट किया जो काबुल का रूलर था, उसे इंडिया पर अटैक करने के लिए बुलाया. बाबर ने इंडिया पर अटैक किया और 1526 में पानीपत की लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और वो इस युद्ध में मारा गया. पानीपत की फर्स्ट बैटल में इब्राहिम लोदी की डेथ के साथ ही दिल्ली सल्तनत का एंड हुआ और बाबर ने इंडिया में मुगल रूल इस्टेब्लिश कर दिया. बाबर के अटैक के बाद दिल्ली सल्तनत का एंड हुआ और इंडिया में मुगल रूल की शुरुआत हुई. Dear students, till now we have studied about the various dynasties of Delhi Sultanate. Now I am telling you about the governance during the Sultanate period. So let's discuss about the administration during Sultanate period. The Sultan was the head of the state, so he dominated the central government. He was also the chief executive and highest court of appeal, and in simple words we can say that whole administration was controlled by Sultan and his decision was supreme in any matter. In order to run the administration smoothly, he appointed many ministers who worked under the control of Sultan. In सल्तनत पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? सो लेट्स डिस्कस. सुल्तान स्टेट का हेड होता था, इसलिए वह सेंट्रल गवर्नमेंट पर हावी था. वह चीफ एग्जीक्यूटिव यानी मुख्य कार्यकारी था, यानी हम कह सकते हैं कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सुल्तान के थ्रू कंट्रोल्ड था. उसका डिसीजन किसी भी मामले में सर्वोच्च था, सुप्रीम था. एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली चलाने के लिए उन्होंने कई मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जिन्होंने सुल्तान के अंडर काम किया था. Dear students, let's discuss some important officials of Delhi Sultanate. First official was Diwan-e-Wajrat. He was also known as Wazir and looked after the finance minister and central administration. He was like a prime minister. दीवान-ए-वजरत को वजीर के रूप में जाना जाता था. फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम वही देखता था. दीवान-ए-वजरत की पोजीशन एक प्राइम मिनिस्टर की तरह होती थी. नेक्स्ट ऑफिशियल वाज दीवान-ए-अर्श. ही वाज द हेड ऑफ मिलिट्री एंड ऑर्गेनाइज्ड द मिलिट्री एंड मेंटेन्ड कंप्लीट डिसिप्लिन इन द आर्मी. ही वाज लाइक अ डिफेंस मिनिस्टर. दीवान-ए-अर्श मिलिट्री का हेड यानी सेना का प्रमुख होता था और मिलिट्री को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड यानी संगठित करता था और सेना में कंप्लीट डिसिप्लिन रखता था. वह एक डिफेंस मिनिस्टर की तरह होता था. नेक्स्ट ऑफिशियल वाज दीवान-ए-इंशा. ही वाज द इंचार्ज ऑफ द एंटायर स्टेट
with the rulers of independent states. He was like a foreign minister. दीवान-ए-इंशाह इंडिपेंडेंट स्टेट्स के रूलर्स और अपने अंडर ऑफिशियल्स के साथ पूरे स्टेट का इंचार्ज होता था. द नेक्स्ट ऑफिशियल वाज चीफ बरेद. बरेद्स वर द स्पाइस. दे वर द ईयर्स एंड आईज ऑफ सुल्तान एंड कीप अपडेटेड द सुल्तान whatever was happening in the entire state. बरेद्स जासूस थे. स्पाइस में जासूस. वे सुल्तान के ईयर्स और आइज यानी कान और आंखें थे और सुल्तान के अंडर रहते थे. पूरे राज्य में जो कुछ भी हो रहा होता था सब सुल्तान को बताते थे. मीन्स सुल्तान को अपडेट रखते थे कि उनके राज्य में क्या हो रहा है. नेक्स्ट वन, काजी उल कुजैत. Qazi ul Quzzat was the head of judiciary, like the present Chief Justice of Supreme Court. Next official was Wakil-e-Dar. Wakil-e-Dar looked after the personal comfort of the Sultan and his family. He also looked after the karkhanas where goods were produced for the royal family. He also maintained the proper record of these karkhanas. मीन्स वकील-ए-दर सुल्तान और उसकी फैमिली की पर्सनल कंफर्ट की देखभाल करते थे. उन्होंने कारखानों की भी देखरेख की जहां रॉयल फैमिली के लिए गुड्स रेडी होती थी. उन्होंने इन कारखानों का प्रॉपर रिकॉर्ड भी बनाए रखा. सो देयर वर द इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स ऑफ द सुल्तान हु लुक्ड आफ्टर द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द सुल्तान. यानी ये सब सुल्तान के इम्पोर्टेंट ऑफिशियल थे जो सुल्तान के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की देखभाल करते थे. सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस मॉड्यूल वी हैव डिस्कस्ड द लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड डिस्कस्ड द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड. थैंक यू. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी.